Hello everyone. Today we will start a new chapter of your political science book, chapter 5, and chapter name is Panchayati Raj. This chapter begin with a question, and question is what happened after people elect their representative. कि देखो इससे पहले जो हम 4 चैप्टर कर चुके हैं तो उनसे हमें ये रियलाइज हो चुका है कि इन इंडिया देयर इज democratic form of government. Democratic government means here government is chosen by peoples and peoples choose their representative who work या who run the government on the behalf of citizen. तो उसके बाद ही ये उसी से ये क्वेश्चन रिलेटेड है कि व्हाट हैपन आफ्टर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, कि हम लोगों ने क्या किया, इलेक्शन के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज किया एंड उसके बाद क्या होता है. नेक्स्ट इज हाउ आर डिसीजन मेड्स, कि हाँ कि जिन रिप्रेजेंटेटिव को हमने चूज किया वो कैसे डिसीजन लेते हैं और वो कौन कौन से वर्क करते हैं. लेट्स look at how these take place in rural area. In this chapter we know we find out answer of these question कि in rural area what kind of works done by these representatives who are chosen by peoples of village. कि हमने क्या किया कि जो लीडर्स या गवर्नमेंट में जो भी लीडर्स हैं उनको हम अपॉइंट कर रहे हैं तो वो कैसे वर्क कर रहे हैं. और रूरल एरिया या रूरल एरिया मीन्स विलेजेस में जो रिप्रेजेंटेटिव हैं या जो गवर्नमेंट का फॉर्म है वो कैसे रन करता है. सो इन विलेज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज पंचायती राज. हेयर people directly participate in decision making process through gram sabha. Here you can see image of gram sabha. The first is gram sabha. Gram sabha is a meeting of all adults who live in the area covered by a panchayat. Means a people who has more than 18 year age आर द मेंबर ऑफ ग्राम सभा. तो एक ग्राम या विलेज में जो भी पीपल जिनका एज मोर देन 18 ईयर है जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो ही सभी क्या होते हैं, ग्राम सभा के मेंबर होते हैं. इट मीन्स ग्राम पंचायत आर चोजन बाई द मेंबर ऑफ ग्राम सभा. द ग्राम सभा मीटिंग बिगिन विद द पंचायत प्रेसिडेंट हु इज आल्सो कॉल्ड द सरपंच. First you can say head of panchayat is sarpanch. So we discuss on panchayati raj. So this is the first area you can say level of democratic government. The word panchayat means an assembly of 5 people. This is an age old system in villages of the Indian subcontinent. In modern context, the government has decentralized several functions to the Panchayati Raj. This has been done to include people at the lowest level in the decision making process. तो विलेज में जो गवर्नमेंट का फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड पंचायत, और जो पंचायत का हेड होगा दैट इज कॉल्ड सरपंच, एंड other member of panchayat is called panch, and these panch and sarpanch are elected for a fixed period. In India this is a 5 period. Every village panchayat is divided into wards. You can say smaller area. Each ward elect a representative who is known as the ward member or panch. All the member of the gram sabha also elect a sarpanch who is the panchayat president. The ward panch and the sarpanch form the gram panchayat. The gram panchayat elected for 5 year. कि जो पंचायत राज होता है तो जो पंचायत होते हैं उसके जो मेन मेंबर होते हैं वो होते हैं पंच एंड सरपंच और पंचायत सेक्रेटरी. तो जो पंचायत सेक्रेटरी होता है
that is not chosen by election, that is appointed by government. The secretary is responsible for calling the meeting of the Gram Sabha and Gram Panchayat and keep record of the proceeding या different types of work of ग्राम सभा. तो जो पंचायत है उसमें 3 पार्ट हो गए. फर्स्ट सरपंच हु इज द हेड ऑफ पंचायत एंड इट्स मेंबर दैट इज कॉल्ड पंच एंड थर्ड इज पंचायत सेक्रेटरी. तो सेक्रेटरी को हम इलेक्शन के थ्रू चूज नहीं करते, वो उसको गवर्नमेंट अपॉइंट करते, या यू कैन से ग्राम सेक्रेटरी इज ए ऑफिसर दैट इज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, बट पंच एंड सरपंच आर इलेक्टेड मेंबर थ्रू ग्राम सभा. एट द इलेक्शन टाइम विलेज आर डिवाइड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, या यू कैन से इन डिफरेंट वर्ड्स. एंड और जब इलेक्शन होता है तो उस टाइम विलेज को उसके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, या यू कैन से डिफरेंट वार्ड में डिवाइड कर दिया जाता है. और एक वार्ड के मेंबर अपने में से एक लीडर को चूज करते हैं थ्रू वोट, कि उनके जैसे वार्ड से जो भी रिप्रेजेंटेटिव खड़े होंगे, कैंडिडेट खड़े होंगे, तो उनको वो लोग क्या करेंगे, वोट डाल के उनमें से अपना लीडर चूज करते हैं. तो ये डिफरेंट वार्ड से डिफरेंट मेंबर बन के आते हैं, उन्हीं को ही हम पंच कहते हैं. और ये पंच ही अपने में से अपना एक हेड इलेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सरपंच. यू कैन से प्रेसिडेंट ऑफ पंचायत. Here you can see a story of a village, हरदास विलेज. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्राम सभा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटिंग एट डिफरेंट टाइम. तो ग्राम सभा का जब मीटिंग होगा तो उसमें जो पंच एंड सरपंच है वो वहाँ प्रेजेंट होंगे, और विलेज सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि टाइम टू टाइम ग्राम सभा की मीटिंग बुलाना. तो उस मीटिंग में क्या होता है कि पीपल डिस्कस ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इशू या प्रॉब्लम ऑफ विलेज. फॉर एग्जांपल इन दिस स्टोरी यू कैन रीड दैट कि पीपल ऑफ हरदास विलेज डिस्कस ऑन वाटर इशू ऑफ देयर विलेज. की जो हरदास विलेज की स्टोरी दी गई है वहाँ पे लोगों को ड्रिंकिंग वाटर की बहुत प्रॉब्लम है, तो लोग उसके ऊपर अपना व्यू दे रहे हैं सभी कि इसको कैसे सोल्व किया जाए. इन नेक्स्ट टाइम जो उसका नेक्स्ट मीटिंग हुआ उसमें जो नेक्स्ट एजेंडा था दैट आर डिस्कशन ऑन बीपीएल. बीपीएल मीन्स बिलो पीपल हु लिव इन बिलो पॉवर्टी लाइन. तो इंडिया में क्या होता है कि जो पीपल होते हैं बीपीएल के अंदर आते हैं तो उनको गवर्नमेंट जो फूड ग्रेन है या यू कैन उनको फूड ग्रेन कम रेट पे सप्लाई करती है. तो ये गवर्नमेंट ने लोगों की जो पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ रहे थे उनके डेवलपमेंट के लिए उनको फूड प्रोवाइड हो उसके लिए ये किया था. तो लोग इसमें इस टाइम इसमें लोग ग्राम सभा में डिस्कस कर रहे थे कि उनके विलेज में एक ऐसा पर्सन है नेटवर्क कि जिसके पास घर में सारी लग्जरी टीवी अगर आइटम है, बट फिर भी वो क्या है बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आ रहा है. और उनके विलेज में एक ऐसा पर्सन भी है जिसके पास बेचारे को खाने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी वो बिलो पॉवर्टी लाइन में बीपीएल के अंदर नहीं आ रहा. तो जब लोगों का जब भी डिस्कशन हो रहा था वो यही डिस्कस कर रहे थे कि इतना अनजस्टिस क्यों है, तो इसके ऊपर भी वो डिस्कस कर रहे थे. The Gram Sabha is a key factor in making the Gram Panchayat play its role and be responsible. It is the place where all plans for the work of the Gram Panchayat are placed before the people. The Gram Sabha prevent the Panchayat from doing wrong things like misuse money or favoring certain peoples. It play an important role in keeping an eye on the elected representative and in making them responsible to the person who elected them. कि यहाँ जो पंचायत राज है वहाँ सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ग्राम सभा की, कि ग्राम सभा की मीटिंग होगी तो जो ग्राम सभा के मेंबर हैं वो डायरेक्ट जो पंचायत के जो हेड हैं प्रेसिडेंट हो गया और जो पंच हो गए उनसे वो डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ वर्क्स यू डन या यू कैन से डू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज. कि जो भी उनको फंड मनी मिल रहा है उसका वो लोग कैसे यूज कर रहे हैं. तो इट मीन्स
It is responsibility of Gram Sabha to take a watch on the work of Panchayat. Next is function of Gram Panchayat. First is construction and maintenance of public facilities. The Gram Panchayat look after the construction of water source, road, drainage, school building and other common property resources. These facilities are important for the villagers. The Gram Panchayat levies and collect local tax. For example, the Gram Panchayat collect tax from the village market, houses. Sources of fund for the Panchayat. Collection of tax on house and market. Government schedule fund relief from various department to the government through जिला परिषद. डोनेशन फॉर कम्युनिटी वर्क्स. कि जो हमने यहाँ रीड किए कि ग्राम पंचायत का जो मेन वर्क्स हो गए कि विलेज में जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क है उनको करवाना, और जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव स्कीम है उनको एग्जीक्यूट कराना. फॉर एग्जांपल मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. तो द गवर्नमेंट कैरी आउट वेरियस प्रोग्राम for generating employment in the village. Fund for such program come through the official machinery. The Gram Panchayat look after education and implementation of such program. कि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट कोई भी वर्क कर रहा है तो विलेज में उनको फॉलो कराने का काम होगा पंचायत का. और सारे जो कंस्ट्रक्शन वर्क हो गए उनको करवाने के लिए जो रिवेन्यू चाहिए या यू कैन से मनी चाहिए, उनका पंचायत के पास डिफरेंट सोर्स से वो मनी कलेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल थ्रू टैक्स. तो विलेजेस में क्या होता है कि कोई भी मार्केट हो गया या फेयर है या जो हाउसेज है उनसे जो टैक्स आता है तो उनको पंचायत कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए यूज करती है. एंड सम टाइम दे कैन गेट ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट. तो उनसे भी गवर्नमेंट से भी उनको ग्रांट मिलती है. You can see different types of construction work done by the people of Gram Panchayat. Next is function of Gram Sabha. The Gram Sabha function to provide check and balance on working of the Gram Panchayat. During the meeting of Gram Sabha, all the attendants have the right to raise question if they find some wrongdoing. For example, while finalizing the BPL list, the Sarpanch may include the name of a rich person or execute the name of a poor person. कि यहाँ पे जो मेन वर्क जो मेन रोल प्ले किया जा रहा है पंचायती राज में, दैट इज डन बाय ग्राम सभा. कि जो भी वर्क पंचायत कर रही है, रॉन्ग कर रही है, राइट कर रही है, उसको पूरा टेक केयर करने का जिम्मेदारी होगा ग्राम सभा का. कि ग्राम सभा ही उसका वर्क, पंचायत के सारे वर्क को चेक करेगी. और अगर पंचायत कुछ रॉन्ग वर्क कर रही है तो ये ग्राम सभा का राइट होगा कि वो उनको गलत करने से रोके. नेक्स्ट 3 लेवल ऑफ पंचायत. फर्स्ट इज ग्राम पंचायत और विलेज लेवल पंचायत. सेकेंड इज पंचायत समिति और जनपद पंचायत या यू कैन से ब्लॉक लेवल पंचायत. एंड थर्ड इज जिला परिषद या यू कैन से डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत. तो जो विलेज होता है वहां पे होता है जो फर्स्ट टायर ऑफ गवर्नमेंट हो गया, दैट इज कॉल्ड ग्राम पंचायत. एंड पंच एंड सरपंच आर द मेंबर ऑफ पंचायत. देन सेकेंड इज ब्लॉक लेवल विच इज कॉल्ड द जनपद पंचायत. तो जो ब्लॉक सेकेंड लेवल हो गया, ब्लॉक पंचायत हो गया, या यू कैन से इट को पंचायत समिति, दैट इज द ग्रुप ऑफ सम
पंचायत की, कुछ विलेज की जो पंचायत होती हैं उन्हीं को मिला के ही क्या बना दिया जाता है, पंचायत समिति बना दिया जाता है। एंड ब्लॉक ऑफिसर इज द हेड ऑफ पंचायत समिति। एंड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल देयर इज डिस्ट्रिक्ट पंचायत और जिला परिषद। तो जो जिला परिषद होगा उसका काम होगा कि उसके एरिया में जितनी भी पंचायत समिति आ रही है उनका टेक केयर करना। इट मीन्स जो फर्स्ट जो टायर है दैट इज कॉल्ड पंचायती राज, और ये सभी विलेज में अपना अलग अलग होगा। इसके हेड होंगे पंच एंड सरपंच। जो सेकंड टायर होता है वो होता है आपका ब्लॉक लेवल, या यू कैन से इट इज कॉल्ड पंचायत समिति, कि 10 या 20 विलेज को मिला के क्या बना दिया जाता है, पंचायत समिति, और इसका हेड होगा ब्लॉक ऑफिसर। एंड थर्ड इज जिला परिषद। ये सभी डिस्ट्रिक्ट पे अपना अलग अलग होता है, तो जो पर डिस्ट्रिक्ट पे एक ही पंचायत समिति होती है दैट इज कॉल्ड जिला परिषद, और इसका काम होगा अपने एरिया में जितने भी पंचायत समिति आ रही है उनका जो भी वर्क है उनका टेक केयर करना और उनको टाइमली ग्रांट देना। नाउ आवर चैप्टर had completed. So in this chapter we had already discussed about Panchayati Raj, that is in government form in rural area, and head of Panchayat is Sarpanch and member of Panchayat is Panch. They are elected from different ward, and main important role played by Panchayati Raj is done by Gram Sabha, and all member who has more than 18 year age, he has the right to vote are the member of Panchayat Gram Sabha. Thank you.